Now let's discuss the elimination techniques for prelims. So basically, I have observed last 10-year paper, and based on that, I have came out with 10 different kind of techniques of intelligent guessing which you can use. And ultimately, let me be very clear here before you start abusing me, that only intelligent people can do intelligent guessing. There might be people who will tell you that you can, even without studying the basic books, you can sharpen your intelligent guessing techniques. Well, I am not that person who will who will lay any false claims. Definitely, to use these intelligent guessing techniques, to use theorem techniques, you need to have studied really well. Your basics need to be completely clear. ठीक है ना? Your reading horizon should have been very wide. If you don't have these things in you, there is no way you can use these techniques successfully in the exam, right? So therefore, it's not a shortcut. Actually, it's not a shortcut. Some people say it's a shortcut. It's not a shortcut. Actually, it is something which will help you to solve 15-20 those questions which are moderate and tough. इजी क्वेश्चन जो आते हैं 40 क्वेश्चन, वो तो आप सॉल्व कर ही लेते हो. वो जो एक्स्ट्रा 15-20 क्वेश्चन है ना, जिससे आपका गेम बिल्कुल इजी हो जाता है, वो आपकी अगर तिग्रम टेक्निक अच्छी है तो इट मेक्स योर केस मच मोर इजियर, मच मोर सिंपलर. ठीक है ना? अब इफ यू टॉक अबाउट द स्कोप, व्हाई देयर इज स्कोप फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग, व्हाट द पीपल, the examiners who set your paper, they are usually journalists. They are not experts. They are not subject experts. So because they are not subject experts, जब वो options frame करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं जब वो wrong option होता है, वो इस तरीके से frame करते हैं कि अगर आप उसको बहुत closely analyze करो तो लगता है कि वो odd one out है. ठीक है ना? For example, अगर कोई science का question है, तो science का question, अब ये ऐसे लोग होते हैं जो कोई scientist नहीं होते हैं, तो लेट्स से दे आर टॉकिंग अबाउट जीन थेरेपी, तो उन्होंने जीन थेरेपी के बारे में अगर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया तो वो दिख जाता है कि वो रॉन्ग है. एंड आई विल प्रूव यू दिस थिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन. ठीक है ना? सो व्हाई डू वी नीड दिस टेक्निक्स? बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, यूपीएससी एग्जाम इज बिकमिंग अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? सेकेंडली, it puts you in safe zone. I have seen those who have mastered these techniques. They are continuously scoring 115 plus. They are cracking both IAS and IFS prelims year by year. Pattern change से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. They are still clearing the cutoff very comfortably. ठीक है ना? Also, it also boosts your confidence. जिनकी ये टेक्निक स्ट्रांग होती है, वो prelims के पेपर में कॉन्फिडेंस से आता है. इनको लगता है कि कुछ भी पूछ लेगा, हमारा क्लियर हो जाएगा. अब let's see the type of intelligent guessing / shortcut techniques. तो पहली टेक्निक जो है, it is exaggeration of words. ये सबसे इजी है, सबसे नोन टेक्निक है. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स 9 out of 10 times wrong होते हैं. 9 out of 10 times, 10 नहीं, 9 out of 10 times. So there is a 90% chance that you can mark the right answer. For example, if you see this question, the scientific view is, and these all questions have been asked in the UPSC exam, the scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial level. If the global temperature increase beyond 3 degrees, what can be its possible impacts? 1. Terrestrial biosphere trends towards a net carbon source. 2. Widespread coral mortality will occur. 3. All, see, understand this keyword, all the global wetland will permanently disappear. Cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world. Both of them look very extreme, very extreme. कैसे हो सकता है कि 3 डिग्री अगर बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, बट खत्म हो जाना, इट इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट. सो वंस वी सी 3 and 4 are wrong, we are left with only the one statement which is 1 and 2 only. ठीक है ना? Similarly, see this question.
with reference to India's desert national park, which one of the following statements are correct? This was asked in 2020 prelims. It is spread over 2 districts. 2. There is no human habitation inside the park. Now, this statement 1 is very difficult. I mean, it's difficult to say whether it's spread over 1 or 2, especially for a guy who's not from Rajasthan. But if we see the statement 2, there is no human habitation inside the park. Now, clearly, it is not possible. कितना भी इंडिया में कोई भी पार्क हो, ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ तो रहती ही है, 10, 20, 50 लोग तो रहते ही हैं. इंडिया जैसी कंट्री में नहीं पॉसिबल है. Once you remove statement 2, then you are left with only one statement, 1 and 3 only. Then you see this question. This was asked last year prelims. With reference to the casual worker employed in India, consider the following statement. All casual workers are entitled for employees' provident fund coverage. 2. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. 3. The government can by a notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. तो अब ये जो है all casual workers का statement जो है, this is actually extreme statement, very extreme. All casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. बहुत ज़्यादा extreme है ये statement. Once you remove that, you are left with only one option, 1 and 3 only. Now, if you talk about this question, Dugong, ये ठीक है, easy is. Now, if you talk about this question, consider the following statement. The International Solar Alliance was launched at UN Climate Change Conference in 2015. The statement 2 says, the alliance includes all the member countries of United Nations. All the member countries. ऐसा possible हो सकता है? कोई भी ऐसा organization है जिसमें UN के सारी members हो? कोई भी नहीं है UN के अलावा. तो extreme है. So therefore, this statement 2 is wrong. Statement 1 is correct. Now we come to the second technique, which is hard to verify facts. Usually क्या होता है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं खासकर, अब वो क्वेश्चंस डिबेटेबल है. कोई चीज मेडिवल हिस्ट्री में हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री में हुई है, आप बिल्कुल 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हो कि वो चीज जो है बिल्कुल थी उस समय या नहीं थी. तो ऐसे जो होते हैं ना, वो यूजुअली सही होते हैं. यूजुअली दे ऑल आर करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर दे आस्क्ड द क्वेश्चन, according to Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagara Empire were expert in which of the following areas? 1. Wrestling, astrology, accounting, soothsaying. Now, it's almost impossible for anyone to say that girls were not employed as accountant. Almost impossible. Something happened 500 years back. One historian might have said that. Second historian, might give you a proof, which says that yes, women were appointed as accountant. So ultimately, in these kind of questions, UPSC plays safe. तो usually वो कोई controversy नहीं चाहेगी, बाद में लोग केस करें, कोर्ट में जाए, तो वो usually it keeps all of them correct. So the right answer here is D, 1, 2 and 3, 4. तो जहां पे भी possibility है ना controversy की, UPSC उसको avoid करती है. Let's say this question regarding the taxation system of Krishnadev, the ruler of Vijayanagar, consider the following statement. The tax rate on land was fixed depending on the quality of the land. This is statement 1. Private owners of the workshops paid an industrial tax. Again, ये बहुत ही hard to verify fact है, तो सही होगा. So both of them are correct. Then you have the technique 3, which is the basic common sense. Here you have to apply common sense. You have to link things. इसके लिए जरूरी है कि आपका रीजनिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो, आपकी कनेक्टिंग द डॉट्स पावर स्ट्रॉन्ग हो. फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू टेक्नोलॉजीज फॉर सोलर पावर प्रोडक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 1. Photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun's ray to generate heat, which is further used in electric generation process. Statement 2 says photovoltaics generate AC while solar thermal generates DC. Statement 3 says India has manufacturing base for solar thermal technology
but not for photovoltaics. अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका, इसको अगर हम देखेंगे, हम लोग क्या कर रही है गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट लोकल प्रोड्यूसर्स को सब्सिडाइज कर रही है. इस चक्कर में यूएस ने क्या किया, यूएस ने हमको WTO लेके गई. यूएस कह रही है कि ये ट्रिम्स का वायलेशन है. इंडिया की गवर्नमेंट हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को क्यों प्रमोट कर रही है जब कोई बेस ही नहीं है यहाँ पे? बेस है तभी तो प्रमोट कर रही है ना. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू लिंक इट विद करंट अफेयर्स. अब स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है तो अपने आप डायरेक्टली एक ही आंसर बचता है आपका, विच इज 1 ओनली. ठीक है ना. उसके बाद लेट्स से ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड लास्ट ईयर अगेन इन प्रीलिम्स. द मोंटेग्यू Chelmsford reform of 1990 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. अब ये देखो, all the women above the age of 21 पॉसिबल है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमें कब मिली? 47 में. तो कैसे पॉसिबल होगा 21 में ऑल द वुमेन को? बिकॉज उस समय प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन होती थी, राइट. सो वंस यू connect that with that feature कि India achieved universal adult franchise only in 1947 and therefore this statement is wrong. ठीक है ना. Then fourth technique is word play. Word play में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के वर्ड से डेसिफर करना होता है कि वो किस चीज से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल there was this question asked about स्वराज सभा. Which of the following change is named to स्वराज सभा? अब हिंदू महासभा का क्या मतलब स्वराज से? साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन में कोई मतलब नहीं है. स्वराज मीन्स व्हाट? स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, होम रूल. एंड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो होम रूल जिसमें लिखा है? इट इज स्टेटमेंट 1. सो द आंसर विल बी ऑल इंडिया होम रूल लीग. सिमिलरली यू सी दिस क्वेश्चन, ये और सारे क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय Which one of the following? अब रूल ऑफ लॉ आईसीजे तो नहीं निकालेगा. एमनेस्टी इंटरनेशनल का मामला ह्यूमन राइट्स से, रूल ऑफ लॉ से कोई मतलब नहीं है. ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, रूल ऑफ लॉ से कोई मतलब नहीं है. ओनली द वर्ड जस्टिस प्रोजेक्ट हैज जस्टिस इन इट. जस्टिस मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ लीगल सिस्टम. इट शुड बी डीलिंग विद सम काइंड ऑफ लीगल सिस्टम. So therefore the statement D is correct. Now if we talk about this question, which one of the following books of ancient India has the love story of son of the founder of Shunga dynasty? अब बेसिकली शुंगा का जो नाम था क्या था? पुष्यमित्र शुंग. आपको ये पता है तो आप मानो कि उस समय जो बेटे थे, बच्चे थे, उनका नाम पापा से मिलता होगा. ठीक है ना. तो इसमें देखो तो आप देखो तो इसमें पहला स्वप्न वासवदत्ता, सेकंड है मालविकी अग्निमित्रम, थर्ड है मेघदूता, फोर्थ है रत्नावली. अब इनमें देखो सिर्फ मालविकी अग्निमित्रा है जो टेक्निकली आपका मिलता है अग्निमित्रम पुष्यमित्रम. तो बेसिकली आप शुंगा की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका आंसर मालविकी अग्निमित्रम होगा, क्योंकि अग्निमित्रम ही जो है वो इट्स टॉकिंग अबाउट शुंगा प्रिंस और सन ऑफ फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, मतलब पुष्यमित्र का बेटा. तो पुष्यमित्र का जो ये बेटा होगा वो भी कोई ना कहीं से मित्र ही होगा ना. तो ये आपने रिलेट किया और आप जो है बी में आ गए विदाउट नोइंग ABC अबाउट दिस आइडिया. लेकिन देखो बिल्कुल नॉलेज से, जीरो नॉलेज से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अग्निमित्र तक पहुंच पाएंगे. ठीक है ना. देन लास्ट दे वाज दिस क्वेश्चन, भावभूति हस्तिमाला वर फेमस फॉर व्हाट? तो अब भावभूति, भाव मीन्स व्हाट? भाव इज एक्सप्रेशन. तो सीधी सी बात है, हस्ती, दे ऑल आर एक्सप्रेशंस. तो ये क्लियरली आप कर सकते हो कि ये फिलोसोफर नहीं हो सकते, मॉन्क्स नहीं हो सकते, दे आर रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू थिएटर एंड ऑल. तो डेफिनेटली दे विल बी प्लेराइट्स. इन आरबी ऐसे ही है, यू नो, इट्स रिलेटेड टू इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिक स्टडी. Then we talk about this, which one of the following issues the global economic prosperity report. अब यहां पर टर्म क्या है? ग्लोबल. पहला क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक. ग्लोबल एशियन कैसे करेगा? दूसरा है यूरोपियन बैंक. अगेन दिस इज यूरोपियन, सो इट विल नेवर इश्यू एनी काइंड ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट. थर्ड इज यूएस फेडरल रिजर्व. अगेन इट विल ओनली डील अबाउट यूएसए. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज वर्ल्ड बैंक. ठीक है ना. Then you have the fifth technique, which is critical or logical thinking.
तो देखो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, आपको उस एरिया, उस टाइम में जाना पड़ेगा, उस टाइमलाइन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन सेज इन द इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्स अराउंड। तो अब यहाँ पे देखो रखमाबाई का केस कब हुआ, 1884 में। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1884 तक कौन कौन से मैटर सॉल्व हो चुके थे। तो जैसे आप बात करोगे वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, वो ऑलरेडी 1850s में सॉल्व हो गया था थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ईश्वरचंद विद्यासागर। दूसरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये भी आपका सॉल्व हो गया था। अल्टीमेटली अगर आपने देखो फर्स्ट हटा दिया, अगर आपने फर्स्ट हटा दिया तो आपके पास क्या बचेगा, फर्स्ट हटाने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा 2 1 3। तो आपको उस समय के हिसाब से जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उस समय तक कौन से मैटर चल रहे थे, कौन से मैटर रिजॉल्व हो चुके थे। वुमेन एजुकेशन का मैटर रिजॉल्व हो चुका था ऑलरेडी इंडिया में, ये एक्सेप्ट कर लिया था फैक्ट लोगों ने कि भाई एवरी वुमेन हैज राइट टू एजुकेशन। तो जब जैसे ही आपने वन एलिमिनेट किया, यू लेफ्ट विद बी 2 and 3 ओनली। देन यू सी दिस क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड लास्ट ईयर। Consider the following statement. 21st century or 21st February is declared to be an International Mother's Language Day by UNICEF. 2. The demand that Bangla has to be one of the national languages was raised in the Constituent Assembly of Pakistan. अब देखो पहले यहाँ पे इसको करो, UNICEF is Children Education Fund. What has that to do with language? यूनेस्को डील्स विद लैंग्वेज, यूनिसेफ का काम ही नहीं है, वो चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड है। तो वी कैन एलिमिनेट द स्टेटमेंट 1, दिस इज रॉन्ग। देन द सेकंड स्टेटमेंट सेज द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। वेल अल्टीमेटली 52% speakers in Pakistan were Bangla speakers, and for Bengalis, Bangla language, they are very touchy about the Bangla language. It is almost impossible that none of the Bengali representatives have raised this issue of Bengali language in Constituent Assembly. हो ही नहीं सकता है. It's hard to refute fact. बेसिक लॉजिक से आप सोचो यार, जो देश लैंग्वेज के नाम पे टूट गया, उस देश की रिप्रेजेंटेटिव ने कभी बात ही नहीं करी होगी कि बांग्ला को भी हमें नेशनल लैंग्वेज बनाना है. ऐसा थोड़ी ना कि 71 से ही सिर्फ स्टार्ट हुई थी ग्रीवियंसेस 47 से स्टार्ट हुई थी. और पहला फैक्ट ये था कि उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड सोलली एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. ठीक है ना. देन यू हैव द सिक्स्थ टेक्निक विच इज ऑड वन आउट. तो यहां पे देखो ऑड वन आउट करो. सिरीसाइलम, नल्ला मल्ला हिल्स, ओमेशकर है जो आपका सतमाला हिल्स, पुष्कर महादेव हिल्स. अब महादेव हिल्स है मध्य प्रदेश में, पुष्कर है आपका राजस्थान में. तो आप डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते हो. जैसे ही आपने एलिमिनेट किया स्टेटमेंट 3, यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, A1 ओनली. ठीक है ना. ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन 2018 एज पर द NSO 17th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब ये इतना टफ है, किसको पता कि क्या सर्वे में था, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे ऑड वन आउट का यूज करके. फॉर एग्जांपल इट सेज रायसा हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड अमंग्स इट्स रूरल हाउसहोल्ड. 2, आउट ऑफ टोटल एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड इन कंट्री अ लिटिल ओवर 60% बिलोंग्स टू OBC. ये कहीं से भी फैक्ट नहीं होता. मंडल कमीशन ने 52% कहा था. 60% इज टू एक्सट्रीम. ठीक है ना. उसके बाद SC भी है, ST भी है. तो यू नो अल्टीमेटली इट लुक्स वेरी एक्सट्रीम, राइट. वंस यू एलिमिनेट दैट, यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन. अच्छा, एक चीज और देखा करो, जब कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट कोई दिखता है ना, तो देख लिया करो यहाँ पे कि अगर हम उसको हटाएंगे तो हम डायरेक्टली आंसर में आ जाएंगे. अगर आ जाएंगे तो 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा. ठीक है ना. नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन जो है आपका अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल. अब आप क्लियरली सोचो, बायोफ्यूल जो है हमारा सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, हम नॉन फूड ग्रेन से ही बना रहे हैं, नॉन फूड ग्रेन से, बिकॉज आइडिया इज दैट कि बायोफ्यूल शुड नॉट क्रिएट फूड स्केर्सिटी इन इंडिया. ठीक है ना.
अब नॉन फूड ग्रेन जो है यहाँ पे कौन कौन से हैं? यहाँ पे जो है डैमेज्ड व्हीट ग्रेन नॉन फूड ग्रेन ये है, कसावा जो है आपका काइंड ऑफ वेस्ट है, ग्राउंडनट सीड्स और आपके हॉर्स ग्राम, ये दोनों आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं। तो फूड प्रोडक्ट्स को आप बायोफ्यूल में नहीं यूज करते, तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है। तो यू आर लेफ्ट विथ रॉटन पोटैटो एंड शुगर बीट। सो क्लियरली द आंसर विल बी 1 2 5 6, ठीक है ना। सिमिलरली if you talk about this question, under cyber insurance for individuals, which one of the following benefits are generally covered? तो देखो इसमें आप स्टेटमेंट 2 को देखो, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रीन विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूफ सो। तो अब यार ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा ना, कोई भी आदमी अपना कंप्यूटर 1-2 साल बाद तोड़ देगा और उसके बाद क्या कहेगा कि भाई लाओ मेरे को नया कंप्यूटर। तो ये प्रैक्टिकली नहीं है, राइट? सो दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी टफ, बट इफ यू सी दिस silly statement, you will clearly see it's wrong. And once you eliminate that silly statement, you arrive at the right answer. ठीक है? Similarly, इसको देखो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब जीसीसी में भाई ईरान कैसे हो सकता है? ईरान अरब वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, ईरान की किसी भी अरब कंट्री से बनती नहीं है, हो ही सकता पार्ट, तो इट इज द ऑड वन आउट, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द 7th technique, I think this is wrong here, this is the technique number 7. Here you have to connect the dots with current affairs. तो जैसे ये क्वेश्चन को देखो, ये 2019 में आया था। In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. Statement 2 says, in the Lok Sabha, a leader of opposition was recognized for the first time in 1969. Statement 3 says, in the Lok Sabha, if a party does not have a minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as leader of opposition. अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये थ्योरी का है, स्टैटिक है, बट ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 19 में क्या हुआ था? 19 में कांग्रेस के पास 52 सीट्स आई थी, एंड देयर वर सो मेनी न्यूज अबाउट दैट कि इफ दे वुड हैव वन 3 मोर सीट्स, दे वुड हैव गॉट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो अल्टीमेटली आपको उस तरीके से करना पड़ेगा करेक्ट कि भाई इट्स 55 एंड नॉट 75। वंस यू एलिमिनेट स्टेटमेंट 3, यू डायरेक्टली कम टू द राइट आंसर विच इज B2 ओनली, ठीक है ना। ये है आपका। सिमिलरली ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। विथ रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन द प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his right. Now, इस समय, इससे पहले संजय दत्त केस और बहुत सारे और सेलिब्रिटीज का केस था परोल वाला। Parole is an extraordinary situation which is granted only in case of extreme need. For example, your wife has died, your mother has died. तो ऐसे केस में आप जो है you can definitely, you cannot you have to think in that way कि यार राइट कैसे हो जाएगा? ये परोल राइट नहीं है, परोल कंसेशन है, ठीक है ना। तो वो रॉन्ग है। एंड स्टेटमेंट 2 तो हमें पता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि जेल जो है वो स्टेट मैटर है। देन इफ यू टॉक अबाउट टेक्निक 8, सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे आपको क्या करना है कि लेट्स से क्वेश्चन हिस्ट्री का है, आप ज्योग्राफी की नॉलेज यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी दिस क्वेश्चन, the staple commodities of export by the English East India Company from Bengal in the middle of 18th century, they were A, rock, cotton, oilseeds and opium, B, sugar, salt, zinc and lead, C, copper, silver, gold, spices and tea, and D, cotton, silk, salt, petre and opium. अब देखो, देश की हिस्ट्री चेंज हो सकती है, but geography of a country can never change. So India never had gold, India never had silver, we were always short of silver. We have evidences that even the Harappans used to get gold from Afghanistan. So ultimately, if you see this option, you will see around, यहाँ पे oil seed है, India never produced enough oil seed. यहाँ पे zinc और lead है, हम we don't have enough reserves of zinc and lead. यहाँ पे आपका silver है, gold है, again problem है। यहाँ पे देखो, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पेट्रे, ओपियम, ये चारों चीज ऐसी है जो हम आज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, करते हैं। तो स्टेटमेंट डी इज द आंसर, ठीक है ना।
उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट टेक्निक है टेक्निक 9, which is finding silly statement technology questions. देखो मेरे को साइंस, आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बट when I used to give the exam, 80 to 90% of the science questions I used to mark it correct. इसका रीजन ये है कि जो क्वेश्चन बना रहा है वो साइंटिस्ट नहीं है. साइंस के क्वेश्चंस में आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर किसी चीज का एप्लीकेशन है या फिर अगर क्वेश्चन इस तरीके से बना हुआ है कि कौन से चीजों पे कि in which of the following areas can GPS टेक्नोलॉजी be used. कैन मतलब पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं हो सकती बट आगे हो सकती है यूज. तो ऐसे क्वेश्चंस में अनलेस एंटिल कोई सिली स्टेटमेंट ना हो तो यूजुअली ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ठीक है ना. वैसे भी अब साइंस क्वेश्चन में ये पूछो, जो भी साइंस क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है कि इस चीज का कहाँ का एप्लीकेशन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिली स्टेटमेंट. इफ देयर इज नो silly statement, it means that all of the above are correct. ठीक है ना. Similarly again सब में ऐसे ही होगा कि आप जो है सारे देखने बनेंगे और सारे इसमें करेक्ट है. ठीक है ना. तो ये आपकी जो है सारी टेक्निक्स. नेक्स्ट टू द टेक्निक नंबर 10, इट्स द लास्ट टेक्निक which is for this and not for this, which means क्वेश्चन में क्या होता है कि स्टेटमेंट इस तरह से फ्रेम होता है कि ये उस चीज से पॉसिबल है बट ये चीज पॉसिबल नहीं है. For example, the question is about fuel cell. It says fuel cells can be used for powering buildings and not for spoiled devices like laptop, computer. तो जब इस तरह से स्टेटमेंट फ्रेम होता है यूजुअली रॉन्ग होता है. तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है. तो स्टेटमेंट 2 जैसे ही रॉन्ग हुआ, वी आर लेफ्ट विद ओनली वन स्टेटमेंट व्हिच इज वन ओनली. ठीक है ना. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ग्राम न्यायालय, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. द स्टेटमेंट 1 सेज एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस. तो यहां पे भी क्या हो गया, ओनली दिस है नॉट दैट. तो अगेन दिस इज रॉन्ग. ठीक है ना. सो हाउ डू यू नीड टू शार्पन योर इंटेलिजेंट गेसर? अगेन यू नीड टू वाइडन योर हॉरिजन, यू नीड टू रीड मोर, यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस जिसमें थियोरम का यूज हो रहा हो. ठीक है ना. अल्टीमेटली एज आई हैव टोल्ड यू कि यू हैव टू ऑब्जर्व द एग्जामिनर केयरफुली. यू नीड टू सी कि कहां पे सिली मिस्टेक हो सकती है. कोई भी क्वेश्चन को ना आपको छोड़ना नहीं है. नहीं भी आपको आता है, आपको सब स्टेटमेंट को देखना है कि भाई वो स्टेटमेंट में हमें कहां से कहीं भी कुछ हिंट है कि नहीं है. ठीक है ना. तो यू नीड टू रीड मोर. यू नो योर अल्टीमेटली आइडिया इज दैट यू शुड अटेम्प्ट एटलीस्ट 75 क्वेश्चंस एंड बेसिकली 40 क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे. रेस्ट आपको इसी डिग्राम के थ्रू निकालने पड़ेंगे. 25 क्वेश्चंस आप छोड़ दो, वो आपको नहीं आएंगे. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Sajal's Daily.